participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव साहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता मात करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करने के बाद समयसार यानी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप कहने का प्रतिज्ञा की है। त्रिकाल शुद्ध स्वरूप का आश्रय लेने से अज्ञानी जीव को कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है, अकर्ता हो जाता है, यानी ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता अज्ञानी है, अज्ञान उसका कर्म है। अज्ञानी करता है, द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुआ मोह राग द्वेष वो अज्ञानी का कर्म है। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में 75 गाथा चलती है। 75 गाथा में शिष्य ने पूछा है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप हुआ है
यानी आत्मा ज्ञानी हुआ है तो उसकी पहचान क्या है, उसको पहचानने का लक्षण क्या है। उसका उत्तर के रूप में आचार्य भगवान ने 75 गाथा लिखी है। उसका गाथार चलता था। गाथार का शब्द समझ में आएगा तो टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो विस्तार से समझाया है वो समझ में आएगा। फिर से गुजराती में आ समयसार नामનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે સમયસાર શાસ્ત્રમાં સમયસાર અર્થાત આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ, તેનું સ્વરૂપ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે। આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ એનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન થતાં અજ્ઞાની જીવને કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટી જાય છે અને અજ્ઞાની જીવ કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટતા અકર્તા વિભાવનો અકર્તા અને પરદ્રવ્યના પરિણામનો અકર્તા અર્થાત જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ જાય છે। કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિ અજ્ઞાનીને હોય છે। અજ્ઞાની કરતા થઈને અજ્ઞાન પરિણામને ઉત્પન્ન કરે એ એનું કર્મ છે। અથવા દ્રવ્ય કર્મના ઉદયમાં જોડાઈને અજ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખના પરિણામને ઉત્પન્ન કરે એ અજ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિને કર્મ કહેવામાં આવે છે। તો બીજો અધિકાર કરતા કર્મ અધિકાર ચાલે છે, એની ગાથા 75, ગાથા 75 એમાં શિષ્ય પ્રશ્ન કર્યો છે કે આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ થયો છે એટલે કે આત્મા જ્ઞાની થયો છે, એ જ્ઞાનીને અમારે ઓળખવા હોય તો જ્ઞાનીનું લક્ષણ શું અથવા જ્ઞાનીનું ચિહ્ન શું અથવા જ્ઞાનીની સંજ્ઞા શું, એવો શિષ્યએ પ્રશ્ન કર્યો છે। એના ઉત્તર રૂપે ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે ઉત્તરમાં કહ્યું છે, એટલે કે ગાથામાં કહ્યું છે કે જે પરિણામ
કર્મના નિમિત્તે થાય. કર્મ એટલે 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ. 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મનો જે ઉદય થાય આઠ પ્રકારના કર્મનો જે ઉદય થાય એમાં જોડાવાથી જીવની દશામાં જે મોહ, રાગ, દ્વેષ, ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખના પરિણામ થાય તો એ પરિણામનું કર્તાપણું દ્રવ્ય કર્મને છે, પણ જીવ એનો કરતા નથી. જીવ એનો કરતા કેમ નથી? તો કે જીવમાં એવો કોઈ સ્વભાવ નથી કે મોહ, રાગ, દ્વેષ અને ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખને ઉત્પન્ન કરી શકે. માટે જીવ ત્રિકાળ સ્વભાવ દ્રષ્ટિથી મોહ, રાગ, દ્વેષ, ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખનો કરતા નથી. જીવ માત્ર મોહ, રાગ, દ્વેષના પરિણામ એનો જ્ઞાતા, એનો જાણનાર છે. તો જ્ઞાની નું લક્ષણ શું? તો કે જે જ્ઞાની દ્રવ્ય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતા ભાવો એનો કરતા ન બને, પણ માત્ર એનો જ્ઞાતા રહે, તો અમે એને જ્ઞાની કહીએ છીએ. તો પરિણામ કર્મ તણું. ગાથાર્થ વાંચો. જે આત્મા આ કર્મના પરિણામને, કર્મના પરિણામ એટલે દ્રવ્ય કર્મના પરિણામને, દ્રવ્ય કર્મના પરિણામ એટલે દ્રવ્ય કર્મના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા પરિણામ, કર્મના. તો કર્મના એનો અર્થ શું કરવો? તો કે કર્મના નિમિત્તે પરિણામ ઉત્પન્ન થયા. કયા ઉત્પન્ન થયા? મોહ, રાગ, દ્વેષ, ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ, એના પરિણામ ઉત્પન્ન થયા. એ પરિણામને ગાથાર્થના છેલ્લા શબ્દો જોડો, છેલ્લી લીટીના. એ પરિણામને જ્ઞાની કરતો નથી, પરંતુ જાણે છે. તે જ્ઞાની છે. આવું એક વાક્ય. બીજું વાક્ય, જે આત્મા
ત્યાર પછી ગાથાર્થની વચ્ચેની લીટી જોડો. જે આત્મા નો કર્મના પરિણામને, નો કર્મ એટલે શરીરના પરિણામ એટલે શરીરના સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણરૂપ પરિણામ, નો કર્મ એટલે પરદ્રવ્યના પરિણામ, શરીરના પરિણામ. બધનો કર્મ લ્યો તો શરીરના પરિણામ, અબદ્ધનો કર્મ લ્યો તો 10 પ્રકારનો પરિગ્રહ, એના પરિણામ. તો જે આત્મા નો કર્મના પરિણામને કરતો નથી પરંતુ જાણે છે તે જ્ઞાની છે. તો જ્ઞાનીનું લક્ષણ શું બતાવ્યું? તો કે જ્ઞાની જ્ઞાતા છે, જ્ઞાની માત્ર જાણનાર છે. જ્ઞાની વિભાવ પરિણામનો પણ કરતા નથી અને પરદ્રવ્યના પરિણામનો પણ કરતા નથી. એ નાસ્તિથી કથન. અસ્થિતિ કથન જ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખના પરિણામને માત્ર જાણે છે, તેમજ શરીર અને 10 પ્રકારના પરિગ્રહના પરિણામને માત્ર જાણે છે. માત્ર જાણે છે એટલે એમાં જોડાઈને મોહ રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખને ઉત્પન્ન કરતો નથી. એ જીવ જ્ઞાની છે. फिर से हिंदी में देखो गाथार्थ. जो आत्मा का अर्थ है ज्ञानी का आत्मा, एक कर्म के परिणाम को, कर्म का परिणाम यानी कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता हुआ परिणाम. यहाँ कर्म का अर्थ है द्रव्य कर्म. तो द्रव्य कर्म 8 प्रकारना, घाती 4 अघाती 4. कर्म के परिणाम, उसका अर्थ 8 प्रकार के द्रव्य कर्म उसके निमित्त से होता हुआ मोह राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख रूप परिणाम. ये जो परिणाम उत्पन्न हुआ वो परिणाम को ज्ञानी उसका करता नहीं, लेकिन ज्ञानी सिर्फ जानते हैं. गाथार्थ की पहली लाइन लास्ट लाइन के साथ इसी तरह जोड़ दो. मैं फिर से पढ़ता हूँ. जो आत्मा एक कर्म के परिणाम को करता नहीं लेकिन जानता है, वो ज्ञानी है.
ऐसा एक वाक्य। अब दूसरा वाक्य, जो आत्मा, अब गाथार्थ की बीच वाली लाइन उसको जोड़ो। जो आत्मा नो कर्म के परिणाम को करता नहीं लेकिन जानता है, वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी का लक्षण क्या हुआ? तो के द्रव्य कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता हुआ परिणाम, मोह राग द्वेष और इंद्रिय सुख दुख, उसको ज्ञानी जानता है, वो परिणाम का कर्ता नहीं बनता। एक बात। दूसरी बात, ये नो कर्म, बद्ध नो कर्म का अर्थ है शरीर, अबद्ध नो कर्म का अर्थ है 10 प्रकार का परिग्रह। तो शरीर और 10 प्रकार के परिग्रह के परिणाम उसका कर्ता भी आत्मा नहीं। सिर्फ आत्मा, उसको जानने वाला ज्ञाता, ज्ञानी कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता हुआ परिणाम और नो कर्म के परिणाम का कर्ता नहीं है। कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ परिणाम और नो कर्म के परिणाम, उसका जो जीव ज्ञाता रहता है उसका कर्ता नहीं बनता, उसको हम ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञानी का लक्षण क्या? तो कि ज्ञानी का एक लक्षण, वो विभाव का कर्ता नहीं है। दूसरा लक्षण, नो कर्म यानी परद्रव्य, उसके परिणाम का कर्ता नहीं है। तीसरा लक्षण, ज्ञानी विभाव और परद्रव्य के परिणाम का अकर्ता है। चौथा लक्षण, ज्ञानी मोह राग द्वेष रूप परिणाम का ज्ञाता और परद्रव्य के परिणाम का ज्ञाता रहे, वो उसका लक्षण। तो अस्ति नास्ति से ज्ञानी का लक्षण बताया। अब अमृतचंद्राचार्य देव टीका में उसका विस्तार करेंगे। विस्तार शुरू करने से पहले उसकी भूमिका के लिए थोड़ी बात पहले समझनी है। एक बात ये समझनी है कि कर्ता कर्म कहाँ होता है। दूसरी बात समझनी है, भोक्ता भोग्य कहाँ होता है।
तीसरी बात समझनी है, व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ होता है। जहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है वहीं व्याप्य व्यापक संबंध होता है, और जहाँ जहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है वहीं भोक्ता भोग्य संबंध होता है, और जहाँ कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंध होता है वहीं व्याप्य व्यापक संबंध होता है। क्या कहा? ये बात पहले समझनी है। जो कर्ता कर्म अधिकार ने कर्ता कर्म शब्द प्रयोग किया, वहाँ कर्ता कर्म का अर्थ भिन्न है, भिन्न प्रकार का अर्थ है। और 6 द्रव्य के लिए जो सामान्य सिद्धांत बताना है वहाँ कर्ता कर्म का अर्थ भिन्न है। कर्ता कर्म अधिकार में अज्ञानी को कर्ता कहना है, उसके विभाव को कर्म कहना है। ये अज्ञानी की प्रवृत्ति है। अज्ञानी के सामने ज्ञानी रखो तो ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञानी विभाव परिणाम का कर्ता नहीं है, परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। ज्ञानी विभाव को सिर्फ जानता है, ज्ञानी परद्रव्य के परिणाम को सिर्फ जानता है। इसलिए ज्ञानी होकर सिर्फ जानन क्रिया करे तो ज्ञानी को ज्ञाता दृष्टा कहा, अज्ञानी को कर्ता कर्म प्रवृत्ति बताई। अब 6 द्रव्य को सामान्य स्वरूप पहले बताते हैं, बाद में जीव में कैसी तरह समझना और उसके बाद ये गाथा में किस प्रकार से समझना। तो के कर्ता कर्म प्रवृत्ति कहाँ होती है? तो के 6 द्रव्यों को लागू होता हुआ सिद्धांत की प्रथम बात करें तो द्रव्य को कर्ता कहा है और द्रव्य में से उत्पन्न हुआ परिणाम उसको कर्म कहने में आता है। आत्मा द्रव्य कर्ता और आत्मा के परिणाम उसका कर्म। पुद्गल द्रव्य कर्ता, पुद्गल द्रव्य का परिणाम उसका कर्म। धर्म द्रव्य कर्ता,
धर्म द्रव्य के परिणाम उसका कर्म, अधर्म द्रव्य कर्ता, अधर्म द्रव्य के परिणाम उसका कर्म, आकाश द्रव्य कर्ता और आकाश द्रव्य के परिणाम उसका कर्म, काल द्रव्य कर्ता, काल द्रव्य के परिणाम उसका कर्म। तो कर्ता द्रव्य है, वर्तमान परिणाम उसका कर्म है। कर्ता कर्म प्रवृत्ति कहाँ होती है? तो कि कर्ता कर्म प्रवृत्ति द्रव्य पर्याय के बीच में होती है। द्रव्य को कर्ता क्यों कहा? तो कि द्रव्य से पर्याय की रचना होती है, इसलिए द्रव्य को कर्ता कहा। और द्रव्य ने जो रचना उत्पन्न की उसको कर्म कहा। द्रव्य किसका कर्ता बन सकता है? द्रव्य सिर्फ स्वयं के परिणाम का ही कर्ता बन सकता है। द्रव्य पर्याय के बीच में कौन सा संबंध है? तो कि द्रव्य में से जो पर्याय उत्पन्न होती है वो द्रव्य के सर्व भाग से उत्पन्न होती है। इसलिए द्रव्य का जितना क्षेत्र है इतना ही क्षेत्र पर्याय का होता है। द्रव्य पर्याय के बीच में कैसा संबंध है? तो कि पर्याय के पूरे भाग में द्रव्य व्याप जाता है। तो द्रव्य पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होता है। पर्याय कहाँ से आती है? पर्याय द्रव्य के ध्रुव स्वभाव में से आती है। पर्याय को उत्पन्न होने के लिए किसका आधार है? पर्याय को उत्पन्न होने के लिए द्रव्य के क्षेत्र का आधार होता है। पर्याय क्या है? पर्याय द्रव्य से होती हुई रचना है। पर्याय क्या है? तो द्रव्य में रहा हुआ शक्ति रूप सामर्थ्य, उसकी व्यक्तता वो पर्याय है। द्रव्य और पर्याय का काल कितना? द्रव्य त्रिकाल है, पर्याय क्षणिक है। द्रव्य पर्याय के बीच में संबंध कैसा है?
पर्याय द्रव्य के साथ एक समय के लिए अभेद है। द्रव्य से पर्याय भिन्न हो नहीं सकती, पर्याय से द्रव्य भिन्न हो नहीं सकता। द्रव्य पर्याय के बीच में अभिन्नता है। द्रव्य पर्याय दोनों एक दूसरे के साथ अपृथक है। द्रव्य कभी भी पर्याय बिना होता नहीं। पर्याय कभी द्रव्य बिना होती नहीं। क्यों? तो के द्रव्य की रचना वही पर्याय है। क्यों? तो के पर्याय में द्रव्य पूरे भाग में व्याप्ता है, इसलिए द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होता। ऐसा संबंध कब दिखने में आता है? ऐसा संबंध तीनों काल प्रति समय दिखने में आता है। ऐसा संबंध किस द्रव्य में होता है? ऐसा संबंध क्षय द्रव्य में, जाति अपेक्षा के क्षय द्रव्य में, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य में, तीनों काल प्रति समय ऐसा संबंध होता है। द्रव्य से पर्याय अविनाभावी है। अविनाभावी का अर्थ होता है एक होता है त्या दूसरा अवश्य होगा। द्रव्य जहाँ होगा द्रव्य जहाँ होगा